methods. Okay, it's a theory chapter with very less practical subs and very small chapter. Sampling was a major chapter in 12th standard, the biggest syllabus, but now it is not there. It is part of 11th standard, basic understanding of sampling. Now, sampling methods. To understand sampling methods, first thing we need to understand is what is a population. Now, normally population यानी क्या? India याद आता है, ध्यान रखना सबको कि population है India and China. But population in statistics means what? Okay. क्या units of units under study is population. याद है? See, example. I want to conduct a survey on 11th standard students of a particular school, say of BHS, okay, Baroda High School. तो जितने भी students हैं 11th standard के of Baroda High School, they are part of my population. पर जब मैं ये सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ तो एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट आके पूछता है मुझे कि सर मुझे भी ये सर्वे में पार्टिसिपेट करना है, तो will I conduct the survey of that student? No, I'll say you are not part of my survey or you are not part of my population. Understood? Population यानी क्या? All the units covered under the field of inquiry. Now inquiry means किसी को कुछ पूछना या सर्वे या फिर some experiment. For example, ध्यान देना please. A company manufacturing cars. Okay, तो उनको daily, every day, they want to check the quality of the finished car. They want to check कि ये जो कार बना है वो बराबर बना है कि नहीं. तो उनका population क्या है? For that particular day, car manufactured during that day is part of the population. You understood what is population? Now, we have population inquiry. Now, very simple definition of this. Inquiry conducted on the units of population is population inquiry. Now, ये जो population inquiry है, उसका क्या फायदा है? Why should we go for population inquiry? See, I want to conduct a survey on 11th standard students of a particular school. तो population inquiry क्यों करना है? Why don't I go for sample? Population inquiry का फायदा क्या है? See, क्या फायदा है कि रोज every day जितने भी cars manufacture हो रही है, उसकी क्वालिटी बराबर है कि नहीं वो चेक करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? Every two-wheeler is to be checked the moment they are completely manufactured. Why it is so necessary that we have to check each and every unit? Why should we go for population inquiry? क्या जरूरत है? मत चेक करो ना, 100 व्हीकल बन रहे हैं उसमें तो 2-3 चेक कर लो, 2-3 बराबर है तो बाकी सब भी बराबर. ऐसा कर सकते हैं because vehicle like car or a two-wheeler is associated with our life. अगर ब्रेकिंग बराबर नहीं है, उसके पार्ट्स का फिट एंड फिनिश बराबर नहीं है, तो it can cause accident, it can cause death. तो जरूरी है यहाँ पे we have to check each and every vehicle coming out of the factory कि चलेगा. तुमने व्हीकल खरीदा है तो तुमने उसमें देखा होगा कि वो लोग सब क्वालिटी चेक करते हैं और कितनी बार वो व्हीकल पे भी लिखा होता है क्वालिटी चेक. ओके, क्यों करते हैं? सो दैट कोई भी प्रॉब्लम है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही उसको हम रिकॉग्नाइज कर दें, हमें पता चल जाए. तो व्हाई डू वी गो फॉर पॉपुलेशन इंक्वायरी? उससे हमें क्या फायदा होता है? कैन आई से
we get accurate information. बराबर है? Then I'm sure कि जितना भी कार बना है उसका क्वालिटी बराबर है. Understood this? Okay. But इसका disadvantage क्या है? What's the disadvantage of population inquiry? Very good. Yeah, simple. It is time consuming. फिर अगर time consuming है तो it is expensive, isn't it? Time is money. Then what else? Okay, I want to conduct a survey on 11th standard students of BHS. Now, I just want to conduct a survey on 11th standard students of Vadodara. तो मुझे क्या चाहिए? क्या मैं अकेला जाके हर एक स्टूडेंट को मिल सकता हूँ? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा. There will be thousands of students. So I need a large number of enumerators. Very good. उसके बाद can I say vast geographical area cover करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Because I have to check, I have to go and ask each and every person. अगर ये इंडिया होता possible है because of vast geographical area. Okay, so vast geographical area. And very interesting. Say for example, you manufacture battery for car. तुम्हारा काम है, you're a company like Excite, okay, और Amarok. तुम क्या करते हो? तुम बैटरी बनाते हो गाड़ी के लिए. अब बैटरी कैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा बैटरी है? ये कंपनी का बैटरी खरीदो, ये अच्छा कंपनी का बैटरी है. लॉन्ग लास्टिंग, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी वांट. कि अगर कार में बैटरी लगाया तुमने तो बैटरी का लाइफ शुड बी क्वाइट लॉन्ग. Maintenance free, and the more the battery lasts, the better the battery is. तो क्या हर एक बैटरी को मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कितने महीने चलेगा? चेक तो कर सकते हैं, पर चेक करने के बाद क्या मैं उसको फिर बेच पाऊंगा? से फॉर एग्जांपल एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी को मैंने प्लग किया और चेक किया कि ये बैटरी चला 4 years. क्या ये बैटरी को मैं बेच पाऊंगा आफ्टर 4 years? कैन आई से ये इंक्वायरी या इंस्पेक्शन या सर्वे करने के बाद ये बैटरी यूजलेस हो गया? आई गॉट द इंफॉर्मेशन बट दिस बैटरी बिकेम यूजलेस. अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे आई कैन नॉट चेक ईच एंड एवरी बैटरी फॉर लाइफ ऑफ द बैटरी. बट व्हाट आई कैन चेक? आई कैन चेक कि वो बैटरी बराबर चल रहा है कि नहीं, उसका चार्ज बराबर हुआ है कि नहीं, क्वालिटी बराबर है कि नहीं. बट कैन आई चेक द लाइफ? सिमिलर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लाइफ ऑफ अ टायर. क्या हर एक टायर को चला के देख सकते हैं हम लोग? पॉसिबल ही नहीं. फिर पता चलेगा कि हाँ ये टायर, चलो ये टायर 1 लाख किलोमीटर चला. Will anyone buy that tire? No one will buy. So the point is कि जहाँ पे ये यूनिट्स अंडर इंक्वायरी है, if they are destroyed the moment inquiry is conducted, we cannot go for population inquiry. समझ में आया? So for example, फरसान की दुकान पे गए हो, तुम लोग मिठाई की दुकान पे गए हो, तुम्हें कुछ भी खरीदना है, चाइना के हाथ का What is yaya? In English there's no word yaya. Yes, yes. You can say yes, but don't upper class में yes बोलवानी आदत कौन है?
तो एनर्जी पर अलग लेवल पर देते रहे या એવું લાગે કે કોઈ ત્યાં ચીની મિની ગર્લફ્રેન્ડ છે या okay. You all would have visited a मिठाई store और फरसान की दुकान. Now तुमने देखा बहुत सारे लड्डू हैं और तुमने बोला कि अभी ये लड्डू हमको चखाओ. पहले बस ये ना करोगे भाई. You can go if you want to go. And chewing gum is not allowed. You think I am blind? Chewing gum नहीं खा. अरे 5 मिनट पेंसिल लास्ट मिनट 5 मिनट होता है. तो वहां पे पूरा ऐसा मिठाई रखा एंड तुमको मिठाई खरीदना है पर सबसे पहले तुम क्या बोलोगे कि मुझे मिठाई चखना है, टेस्ट करना है. तो उसने तुम्हें एक लड्डू दिया कि ये लो चख लो. तुमने लड्डू खाया बहुत अच्छा लगा. फिर तुम उसको बोलोगे कि क्या गारंटी है कि सब लड्डू ऐसे ही है, मुझे सब चखना है. Is it possible? Not possible. You understand what is population inquiry, where we go to each and every unit, we conduct a survey or we conduct a experiment. तो यहाँ पे क्या करते हैं दुकानदार? He will give you one piece of sweet, जैसे कि चख लो. अगर तुम्हें अच्छा लगे तो खरीदो, नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बैटरी मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? thousands of बैटरी में से कुछ बैटरीज का लाइफ चेक करेगा. टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी thousands of टायर्स में से कुछ टायर का लाइफ चेक करेगा. वो चेक करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है. तभी वो क्लेम कर सकते कि हमारा टायर चलेगा 1 लाख किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर. बैटरी 4 years वारंटी. वो कब कोई कंपनी वारंटी देगा? जब वो श्योर होगा कि 4 साल तक ये बैटरी चलेगा. अगर ये बैटरी 3 साल चलेगा तो क्या मैं 4 साल का वारंटी दे सकता हूँ? You understood this? So in such cases where unit is destroyed, the moment experiment is conducted, we cannot go for population inquiry. At that time, हम किसके लिए जाएंगे? We go for sampling. Understood this? Now, what are samples? सबसे पहले let's understand this. What are samples? Can I say samples are units selected from the population? How will we select the units from the population? Either scientifically, yes, on basis of specific criteria, but how will you pick them up? Either scientifically, using some scientific methods, or randomly. What is randomly? कोई भी. Can I say random means every unit has an equal chance of getting selected? Understood this? So either scientifically or randomly from the population representing the population. यानी जो भी सैंपल में सिलेक्ट करूंगा, it should represent the population. Understood this? तो सैंपल्स जो हमने सिलेक्ट किए उसके ऊपर जो इंक्वायरी करेंगे, that is known as sampling inquiry. Understood this? What is sample? You understood? Unit selected from, याद रखना ये सब, unit selected from population. How will you select it? Either scientific or randomly, representing the whole population. तुम्हें पता है कि हमारे देश के लोग जो है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, उनकी बाहर की कंट्रीज में कोई इज्जत नहीं है. इंडियंस को देख के ही गोरे लोग को ऐसा डिस्कम्फर्ट आ जाता है. दे फील के ये पता नहीं कौन आ गया, पता नहीं क्या करेगा. और इंडियन पासपोर्ट है ना, तो तुम जहाँ पे जाओगे कोई भी देश में, तो इंडियन पासपोर्ट देख के वो तुम्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा. पता है सब क्यों? इंडियंस का नाम बाहर तो बहुत ही खराब है. तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? ओके,
कुछ कंट्रीज के कुछ होटल्स में they don't give rooms to Indian nationals. They don't give rooms. Indian nationals नहीं चाहिए भाई हमको. क्यों? क्योंकि हमारे देश के कुछ सैंपल्स जो बाहर के देश में जाते हैं, अब वो होटल में गए, अच्छे होटल में जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो खराब घर से अच्छे घर के लोग जिसके पास यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं पर आदत हो जाती है ना चोरी की, तो वहां पे जाएंगे, वहां से टॉवेल मार देंगे, खाना मंगाया तो एक दो चम्मच गायब कर देंगे, टॉवेल्स ले आएंगे, शॉपलिफ्टिंग करते हैं. यू नो व्हाट इज शॉपलिफ्टिंग? सी सेल्फ सर्विस डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वहां पे जाएंगे, कुछ ऐसा मेला छुपा के रख देंगे, तो कहीं पे भी थूकेंगे, कहीं पे भी कचरा फेंक देंगे, कहीं पे लाइन है तो उस लाइन को कैसे तोड़ना. See, this is something which I really noticed. यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, उसके आगे ये पूरा काउंटर है, ठीक है, और यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे येलो लाइन है, ठीक है, तो एक यहाँ पे गया, ये इमिग्रेशन ऑफिसर है, यहाँ पे जाएगा, वो कैमरा से देखेगा, सबको एक दो क्वेश्चन पूछेगा, फिर बोलेगा ओके गो, यू विल गो, तुम्हारा इमिग्रेशन हो गया. नाउ यहाँ पे जो लोग हैं, दे शुड बी स्टैंडिंग इन द लाइन. दैट्स अ नॉर्मल क्राइटेरिया. अब ऐसी आदत क्या हमको है? किसी को नहीं है, राइट? हमारा क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे कोई है और मुझे उसका काम है, तो ये यहाँ पे खड़ा भी है ना, तो मैं आजू बाजू बेहतर हो जाए. Have you seen this? We are not used to it. तो कुछ लोग को क्या है कि एयरपोर्ट चले गए तो ये लाइन दिखता ही नहीं, जैसे दिखा ये अकेला है. This really I have seen it. And वहाँ के लोगों को जैसे उनको सिलेबस में सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वैसे उनको ये सब स्कूल में सिखाते हैं कि तुमने कभी यहाँ पे देखा कोई खड़ा है, whether you go to a bank, whether you go to any ticket window of an amusement park, anywhere you go where there is a counter and you have to do some transaction, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है ना, तो जो भी आएगा ना, वो वहां से 3 फीट 4 फीट दूर ही खड़ा है. अब आपने सुना है कुंडाड़ो वाली है, लोग क्या करते हैं, जैसे गरबा में तो मेरे साथ हर साल होता है कि खड़ा हो गए और उसको पैसे दे रहा हूँ कि बर्फ गोला काला खट्टा, उसके पहले 3-4 लोग बीच में कूद पड़ेंगे 500 का नोट लेके, 10 10 10 10 10 10. सर मेरे को नंबर ही नहीं आएगा. फिर मैंने अमृतसर को भेजा, तो ये जो सैंपल्स है, ये सब सैंपल ये किसको इरिटेट करते हैं? इसको इरिटेट करते हैं they are foreigners, you are going into their country. तो ये लोग क्या करते हैं, वो जो सैंपल्स है उसके बेस पे वो जज करते हैं कि इंडिया. See what I have experienced, India is a wonderful country. इंडिया जैसा तो कोई कंट्री है ही नहीं, but the problem is Indians. This is the problem. कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं, कोई भी चीज को फॉलो करना नहीं है. सो लोग सही में मार के आते हैं, चौची लगावे, प्लेन माथी पर मारी लावे, जैसे कभी कुछ दिखा नहीं. And then they feel proud कि आ होटल में टॉवेल जो बच्चा भी गया, वो पैसा वसूल. प्लेन में जाएंगे इंटरनेशनल ट्रिप में, तो इंटरनेशनल ट्रिप में ना लिकर सब होता है, तो इंडियन तो ऐसा लगता है कि ऐसे डेजर्ट से आ रहे, कभी पानी भी नहीं मिला है. तो जैसे वो ऑब्वियस हो गया कि ये लोग को पता चल गया कि ये देसी लोग. अच्छा, अभी एक जबरा इंसिडेंट हो गया. स्पाइस जेट उसका प्लेन है ना, बारिश का टाइम था, रनवे पे स्किड हो गया, तो स्किड होके वो मड एरिया में जाके रुक गए. अब इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज वो स्टेयरकेस आता नहीं है, वो इमरजेंसी एग्जिट खुल जाता है, फिर वहां पे वो हवा भर जाती है, यू हैव टू स्लाइड.
but the door is very small. तो इतना खतरनाक इंसिडेंस था कि प्लेन में there are every type of people. There are women with small kids. There are senior citizens. और उसमें से एक मेंबर ने ये लिखा था ब्लॉग कि इंसान पता नहीं क्या हो जाता है कि वो औरतों और बच्चों को भी धक्के मार रहा है कि पहला हूँ, और वो बूढ़ों को भी धक्के मार कि पहले मुझे यहाँ से निकल जाए. ये तो चलो इंडिया में हुआ. Emirates is one of the world's best airlines. Emirates यानी एक सुपर क्लास एयरलाइन है. उसका भी दुबई में प्लेन ऐसा रनवे पे स्किड हो गया. एंड नियम ये है कि whenever emergency is there, तो तुम्हें तुम्हारा बिलोंगिंग लेके नहीं निकलना है, तुम्हें पहले खुद निकल जाना है. जैसे कभी मान लो इमरजेंसी हुआ तो बैग इधर ही छोड़ देनी है तुम्हें. मुझे मेरा फोन इधर ही छोड़ देना है. I just have to first save myself. That is the rule. तो उसमें भी इतना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, बट पब्लिक सामान लेके तो एग्जिट इतना ही है. तो 3-4 निकल सकते, तो सिर्फ 1 ही जन निकल सकेगा. कोई रूल्स फॉलो इंडियंस करते ही. दिस इज व्हाट हैपेंस कि इमरजेंसी सिचुएशन में मेरे पीछे कुछ लोग अगर वो प्लेन में चल जाते हैं तो चल जाए, पर मेरा सामान तो मुझे लेके बाहर. दिस इज नाउ यू मे नॉट बी लाइक दिस. आर यू लाइक दिस? हाँ, मैंने देखा है जब क्लास छूटता है एंड हमारे क्लास के बॉयज को देख लो, सही में they don't have that sense कि there are girls also who are not as fast as them. तो उनको पहले जाने दो. तो कमो की निकल नहीं रहा है. ये सत्यम तो बैठा ही उधर है. These are the samples. ये sample है, सही में. Okay, now चलो बस 6 बजे जिसको नहीं पढ़ना वो नीचे चले जाओ. You go at 6:30. Will not send message to your place today. हाँ, सही में. ऐसा तुमको नहीं पढ़ना तो सबको नहीं पढ़ना. You cannot generalize. अगर एक स्टूडेंट भी होगा तो मैं पढ़ूंगा. But by majority, I want any one student is there who wants to study, I teach. तो मुझे मेरा कोर्स खत्म करना है. तो तुम इतना टाइम बिगाड़ोगे तो तुम्हें 2 के बदले 3 लेक्चर, तो फिर मैं सैटरडे के बाद फिर संडे भी बुलाऊंगा. You have no escape. तुम्हें किसी को मिल रहा है? सही है. तो मिलो तो भाई जाओ. You want to do good acting places? वो सब जगह जानती है जहाँ कोई आता जाता नहीं. ओके, now ध्यान दो. Now sampling inquiry becomes inevitable. ये important question है. पॉज मत करो. Inevitable. In what situation? Inevitable यानी क्या? What is the meaning of inevitable? Inevitable यानी unavoidable. When it is unavoidable कि हमें सैम्पलिंग में ही जाना पड़ेगा. We cannot go for population inquiry. कब? First, vast geographical area. Can I say this? अगर मुझे पूरा इंडिया कवर करना है तो क्या मैं हर एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स और स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री के पास जा सकता हूँ प्रैक्टिकली? इज इट पॉसिबल? हैव यू सीन एग्जिट पोल? अभी इलेक्शन आ रहा है तो वहां पे एक एग्जिट पोल आएगा. एग्जिट पोल यानी क्या? इलेक्शन से पहले हम सर्वे करते हैं कि कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगा. बीजेपी को कितना मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा, इंडिपेंडेंट को कितना, अदर्स को कितना. नाउ इफ योर पेरेंट्स आर वोटर्स तो ऐसा हो सकता है कि इतने सारे सर्वे हो गए पर तुम्हारे पेरेंट्स के पास कोई पूछने आया नहीं. क्यों? बिकॉज
it is not possible to go for population inquiry to each and every voter. So what they do is they go for sampling. Sampling कैसे करेंगे? हर रैंडम तो है पर उसमें हर एक टाइप के लोगों में से सैंपल सिलेक्ट करें. ओके, जेंडर वाइज इट कैन बी जेंडर मेल फीमेल, इट मे बी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर, मिडिल क्लास, रिच. ओके, इट मे बी एजुकेशनल बैकग्राउंड, undergraduates, graduates, professional. ऐसा सब क्राइटेरिया में से they select people, they conduct a survey. तो vast geographical area, then second, then इससे connected large number of population. If the population is very large, okay, then population is large, then यहाँ पे points लिखे. Then if the unit is destroyed the moment inquiry is conducted, then expensive. No. Then yes, limited resources. Now see, population inquiry अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला कि तुम जाके बड़ौदा में 11th स्टैंडर्ड के हर एक स्टूडेंट को पूछ के आओ कि what are your career goals, can I say it will be very difficult for you. तुम्हें इंफॉर्मेशन आज के जमाने में क्या चाहिए? You want fast information. So when you go for sampling, you get the information very fast because पूरा population में only few samples, तो faster information gathering. So you need limited resources. तुम्हें ज़्यादा enumerators नहीं चाहिए, इतना time consuming नहीं है, fast information मिल जाएगा. Okay, you can cover a very large population, vast geographical area. Now this is an important question which can come in example. Sampling inquiry, when does it become inevitable, unavoidable? Comment. Now, very interesting. Sampling is of two types. With replacement and without replacement. What is with replacement? See, for example, a जिनके भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, मैं उन सबका नाम लिखता हूँ चिट में, ठीक है? Okay. I have 5 gifts to be given. iPhone, iPad, MacBook, a super bike, and a car. ठीक है? Now, अब पर ऐसा मत बोलना जल्दी करो ना ये करो, सी टाइम जो है वो लगेगा, तुमको नहीं पढ़ना तो चले जाओ. क्या? हाँ, रियलिटी में करो. हाँ, तो ऐसे कर सकता हूँ. मैं तुम्हें स्माइली भेजूंगा ना, कार का स्माइली, आईफोन का स्माइली, आईपैड लेके, मैकबुक प्रो. ओके, नाउ मैंने सबका नाम एंटर कर दिया चिट्स में. फिर वो बॉक्स में रख दिया. फिर वो बॉक्स को मैंने शफल किया, किसी आउटसाइडर को बोला इसमें से एक नाम सेलेक्ट करो. ठीक है? तो फर्स्ट चिट खुला, नाम खुला, रूही, आईफोन. ओके, रूही का नाम आया, मैंने उसको आईफोन दे दिया. पर मैंने क्या किया, वो चिट को फोल्ड करके वापस वो बॉक्स में डाल दिया.
फिर मैंने उसको वापस शफल किया, वापस एक चिट उठाया, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो ना फिर से रोई हो सकता है? पॉसिबल क्या? बोला मैंने, पूछा तेरे को क्या करने का, पूछा मैंने क्या करने का, तो मत बोल मत बोल, पूछा। अब ये चिट फिर से कैन बी रोई, तो मैंने उसको एक और गिफ्ट दी। ऐसा पॉसिबल है कि every time when I do this, all the 5 times the gift can go to this world. It can be your lucky day. But if I pick up the chick for the first time, I give a prize to her and tear the chick, then it is what? Then she will not be selected again. So when a sampling is done, if it is with replacement, मैंने replace किया वो चिट वापस, we say the chance of a unit getting selected is again and again. In with replacement, without replacement यानी क्या? कि वो जैसे उसका नाम निकला, मैंने उसको गिफ्ट दिया, पर उस चिट को फाड़ के फेंक। You understood what is with replacement and without? Now, तुम ऐसा सोच रहे होगे कि ये थियरी है, बकवास है, बोरिंग है, आई डू अंडरस्टैंड, बट ये सब कंसेप्ट्स प्रोबेबिलिटी में आते हैं। ये सेम कंसेप्ट्स विल कम इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन व्हिच इज राइट नाउ इन 11। तो ये कंसेप्ट समझना, इसके लिए मैं इतना बोल कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी भी दे सकता हूँ, खुद पढ़ लो, डाउट हो तो आ जाए। पता चला व्हाट इज विद रिप्लेसमेंट। So the unit, if it can be selected again and again, it is with replacement, and if it can be selected only once, it is without replacement. Now, कौन से type of industry में with replacement use होता होगा? जहाँ पे we want extremely good level of quality checks. अगर हम कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि जिसका मान लो पैकिंग बराबर नहीं है, जिसका मान लो मैन्युफैक्चरिंग बराबर नहीं हुआ, एंड इट कैन बी हज़ार्डस, किसी को वो हार्म कर सकता है, वहां पे क्या होता है, एक बार सिलेक्ट किया फिर उसको वापस उसमें रख दिया, अगेन द प्रोसेस इज रिपीटेड, तो हो सकता है वो यूनिट फिर से सिलेक्ट हो। वी से मल्टीपल क्वालिटी चेक्स। Understood this? Okay. Textbook निकालो, important mark कर लो। Attendance का cycle page number 249 का। Now, population, bold with years को mark कर लो। Then, can you see sample with replacement, sample without replacement? Sample with replacement, sample without replacement. उसमें ऐसा इसका definition दिया है कि after replacing the unit selected earlier in a population, so replacing which was selected earlier, it is with replacement, and if you are not replacing, it is without replacement. Very simple. Then population inquiry is also known as census inquiry. Mark कर लो। Then need for sampling कुछ नहीं, और cost next page पे आ जाओ। Mark करो। Sampling is inevitable in the following situation. What is inevitable? Unavoidable. Okay, इसको mark कर लो, underline कर लो। Population is very large, wide geographical area. Unit under inquiry are destroyed. इसमें example दिया है life of a electric bulb. क्या हर एक बल्ब को जला के उसका लाइट देखेंगे हम? Possible ही नहीं है। अगर वो देखेंगे तो खींचेंगे क्या? Okay. Limited availability of resources like time, money, expert for conducting inquiry. ये mark कर दो। Then, और last जो paragraph है ना उसमें, the measures such as mean, standard deviation calculated from numerical data obtained from sample unit are called sample statistics.
इसको मार्क करो. All these measures for population data are called parameters. ये सब आगे पढ़ाई में आएगा, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, नेक्स्ट ईयर आएगा. नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, ये आएगा ही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सैंपल. Okay, now do you know what is an ideal sample? Ideal का मतलब पता चला? Ideal sample यानी क्या? कि एक सैंपल जो हम सिलेक्ट करते हैं, सी आज के जमाने में पॉपुलेशन इंक्वायरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स फास्टर रिजल्ट्स. So we all go for generally the surveys or inquiries are sample surveys. Now सैंपल सिलेक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर तुम्हारा सैंपल सिलेक्शन ही बराबर नहीं, फॉर एग्जाम्पल तो बीमार हो, यू गो टू अ पैथोलॉजी लेबोरेटरी, पता है जहाँ पे ब्लड सैंपल्स चेक होते हैं, ओके, तो उसके पास गए, ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा ब्लड ग्रुप जानना है, यू वांट टू नो योर ब्लड ग्रुप, तो क्या करते हैं? If you want to know your blood group, what do they do? Sample लेंगे, कैसे लेंगे? No, you are wrong. वो इंजेक्शन से, वेन से ब्लड नहीं निकालते. They just prick with the needle on your finger. Okay, और उसमें एकदम minor drop of blood is taken. बराबर है? Okay, उससे तुम्हारा blood group पता चल जाता है. But तुम बीमार हो गए, तुम्हें वायरल फीवर आ गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, क्या पता तुम सही में बीमार हो और तुम्हारा ब्लड सैंपल चाहिए, तो दे विल टेक मोर क्वांटिटी ऑफ ब्लड. तो ये जो सैंपल है वो जरूरी नहीं है कि हर बार ब्लड ग्रुप भी देखना, तो चलो निकाल लो 10 ml में, क्या फर्क पड़ जाएगा, इतना भारी भरकम बॉडी है. नो, तो सैंपल साइज इज वेरी important. There are certain tests, okay, उसके लिए they need 20 ml blood, 30 ml blood. There are certain tests we don't even need 1 ml. Point ml blood is also enough. तो ये sample size is very important. Now ideal sample यानी क्या? ध्यान दो, उसका characteristics क्या होना चाहिए? First, it should represent the population. यानी क्या? All characteristics of population should be included in the sample. Second, it should be randomly selected. Number of units of the population should be favored. यानी ना इसमें mistake should not be favored or prejudiced. That is why it is important कि तुम ध्यान दो, लेते एग्जाम में भी ये लिखो, should not be favored or prejudiced. यानी क्या? Oh, I think no units, not number. No units of population should be favored or prejudiced. Okay, now ध्यान दो, जब मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे मैंने बॉक्स रखा, सबके नाम लिखे, now जैसे ही कोई चिट सिलेक्ट करेगा, सबको ऐसा होगा कि मेरा नाम आना चाहिए. Will everyone feel the same? कि मेरा नाम आना चाहिए. Everyone's heartbeat will increase कि शायद मेरा नाम आ जाए, मुझे चाहिए. It means it is random. अब मैं खुद ऐसा बोलूंगा कि मुझे इसको ही देना है ये गिफ्ट, तो बाकी सब क्या फील करेंगे कि सर इज बायस्ड, सर इज फेवरिंग, सर इज पार्शियल. तो जो हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं, इट हैज टू बी रैंडम. इट मींस व्हाट? यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. एवरी यूनिट हैज अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. तो जैसे चिट आएगा तो हर एक का चांस है कि उसका नाम आ सकता है. दैट इज नोन एज रैंडम. अंडरस्टूड दिस? देन the sample unit should be selected in the same period of time and under identical condition. That is, there should not be any major fluctuation affecting the study during the period of sampling. अगर मैं
एक दिन का कार मैन्युफैक्चरिंग में से कार सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो वो यही दिन का होना चाहिए और एक ही टाइम पे मैं सिलेक्ट करूँ। से फॉर एग्जांपल तुम बीमार पड़े हो तो तुम जब ब्लड सैंपल देने जाते हो तो तुम बीमार हो तभी वो ब्लड सैंपल लेगा तो फायदा है। 2 दिन बाद हो सकता है the things change. Okay, so it has to be selected at the same time. Then selection of sample unit should be independent. That is, selection of unit should not be dependent on selection of any other unit of the sample. यानी एक को select किया तो दूसरा select होगा, वो dependent नहीं होना चाहिए. It should be independent. Then size of sample should be adequate and determined in appropriate manner. Size of sample का example याद आया तुम्हें blood group जानना है तो you need only a drop of blood. पर तुम्हारे ब्लड में वायरस है कि नहीं, तुम्हें वायरल फीवर आया है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Maybe you require more blood. Understood this? Okay, चलो great. अभी हम कल करेंगे. ध्यान. Now, simple random sampling is divided into 2 parts. Sampling with replacement and sampling without replacement. Now, what is sampling with replacement? That the unit what we have selected can be selected again and again and again. यानी सैंपल में से एक यूनिट मैंने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन या सर्वे की, और उसके बाद वो यूनिट वापस पॉपुलेशन में चला गया, और वापस जब मैं सैंपल सिलेक्ट करूंगा तो दैट यूनिट कैन बी सिलेक्टेड अगेन. दैट इज सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट. पता चल गया व्हाट इज सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट. नाउ व्हाट इज सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट? कि पूरे पॉपुलेशन में से अगर मैंने यूनिट सिलेक्ट किया तो एक बार वो सिलेक्ट हो गया फिर से वो सिलेक्ट होगा नहीं. दैट इज सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. अंडरस्टूड दिस? लॉटरी सिस्टम में तुम्हारे टिकट का नंबर, तुम्हारे पास जो टिकट है वो नंबर आया है, ओके, तुम्हें प्राइस मिल गया, पर ये टिकट इज अगेन एलिजिबल फॉर अ प्राइस. इट इज एलिजिबल फॉर मल्टीपल प्राइस. So that is sampling with replacement. But you purchase a lottery ticket and it is eligible for a single price. कि एक बार प्राइस मिल गया, उसके बाद प्राइस मिलेगा नहीं. तो that is sampling without replacement. Now, how do we do the sampling? Now here we are going to study simple random sampling. यानी क्या कि जितना भी पूरा पॉपुलेशन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करते. जो पॉपुलेशन है उसमें से हम डायरेक्टली सब यूनिट्स को सिलेक्ट करेंगे. नाउ सैंपलिंग फर्स्ट मेथड इज नोन एज लॉटरी मेथड. You have the textbook? Page 251 पे आ जाओ. Method of lottery. Now what is method of lottery? See, if I want to select few students, so what I'll do is मैं सबका नाम लिखूंगा चिट के ऊपर, फिर मैं चिट्स को एक बॉक्स में डाल दूंगा, बॉक्स को शफल करूंगा, okay, and then someone will come and pick up the names. That is a simple random sampling using lottery method. तो उसमें क्या है lottery method में? You have seen lottery tickets. लॉटरी टिकट क्या है? एक तुम्हारे पास है, दूसरा हिस्सा कंपनी के पास है. Then they will shuffle all the tickets and a ticket will be selected. If that number matches with yours, you will get the prize. Understood ये method? Now ये जो method हम सीख रहे हैं, that is method of selecting samples. कि हम sample select कैसे करते हैं? Okay, तो first method is lottery method. Second, random number tables. Now this is important because practical sums are based on this. Random number tables यानी क्या?
What is the meaning of random? Can I say not sequence? सीक्वेंस में नहीं, रैंडम है, स्कैटर्ड है, उसको सिलेक्ट करना है, तो एवरी यूनिट हैज अ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज नोन एज रैंडम। कि हर एक यूनिट, जैसे कि लॉटरी का टिकट यहाँ पे है एक बंच और तुम्हारे पास भी उसका सेकेंड पार्ट है, मैंने इसको शफल किया और जैसे मैं नंबर निकाल रहा हूँ, एवरीवन हैज दिस फीलिंग कि मेरा नाम आ सकता है। That is, every student has an equal chance of getting selected in that lucky draw. That is known as random. कि वहाँ पे biasness नहीं है, किसका prejudice नहीं है. Okay? So random number table में क्या करते हैं? पहले तो there were books, random number tables का book आता था, जहाँ पे numbers are written randomly. Say for example 0 है, 1009 है, 31 है, 38 है, जो भी नंबर माइंड ओके, इसमें कोई सीक्वेंस है नहीं। दैट इज व्हाई वी कॉल देम रैंडम नंबर टेबल्स। तो हम ये बुक को यूज कैसे करेंगे? से फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 50 स्टूडेंट आई वांट टू सिलेक्ट 5 स्टूडेंट, तो वो जो 50 स्टूडेंट है उनका नंबर है 1 2, रोल नंबर 1 2 50। अब मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, तो मैं चालू करूंगा, आई टेक एनी रो और एनी कॉलम। आई स्टार्ट विद दिस, जैसे 0 आएगा, 0 आएगा, किस स्टूडेंट का रोल नंबर है 0, 0 विल नॉट कम। 70 आएगा, किस स्टूडेंट का रोल नंबर है 70, विल 70 कम? नो। 1009, 31, 38, you understood? So random table से हम randomly numbers को select करेंगे। Understood this? Because there was a time when computers were not there. आज की तारीख में Excel जो है, Microsoft Excel, उसमें random करके function है। So if you want 5 numbers ranging between 1 to 50, you put that command in Excel and you will get randomly 5 numbers. फिर से तुम वो फॉर्मूला डालोगे तो फिर से कुछ अलग 5 नंबर सिलेक्ट होंगे, which will be randomly selected. But there was a time when computers were not there, ये सब प्रोग्रामिंग नहीं था, तो लोग randomly कैसे डिसाइड करते थे? See, every time going for a lottery method, for 50 students it may be okay, for 100, 200, 300, 500 it may be okay people. But what if there are 10,000 people? डिफिकल्ट है। 10,000 लोगों के लिए 10,000 टिकट्स प्रिंट कराओ, फिर वो 10,000 टिकट्स में से एक सिलेक्ट करना है, तो क्या करते थे? एट दैट टाइम दे यूज्ड टू गो फॉर दीस बुक्स व्हिच इज नोन एज रैंडम नंबर टेबल बुक। ओके, कम टू पेज नंबर 251, 52 to 52। मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल में इंपॉर्टेंट वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया उसको मार्क कर लो, ये थियरी में आएगा। It's an important question. उसमें जो फर्स्ट है ना, LHC depicts random number table, उसको मार्क करो डबल, because it is the most popular and most commonly used table. LHC depict. ठीक है? Now, you can see this table over here, random number table. तुम देखा यहाँ पे, अब मुझे कुछ भी सिलेक्ट करना है, तो I may randomly take one row or one column, one row or one column, और इसको ही मैं पकड़ के चलूँगा. It is all random. Have you played cricket using a textbook? Yes. We all would have. Okay. And अभी तुम लोगों ने भी किया, तो I think ये कितने सालों से ये चला आता है। यू रैंडमली ओपन, फिर तुम्हारा स्कोर होता है, उसमें ऐसा कुछ मुझे अभी परफेक्टली याद नहीं है, बिकॉज इट इज 91 92 व्हेन आई वाज इन लाइक 9th 10th स्टैंडर्ड, तब हम खेलते थे, तो उसमें कुछ 0 आ जाता है एंड में, तो यू आर आउट। फिर ऐसा स्कोरिंग होता है 1 रन 2 रन 3 रन 4 रन 5 रन 6 रन, और ऐसा खेलते गेम्स खेलते बच्चे लोग। ओके, अब तो शायद मोबाइल आ गया, तो ये सब के बारे में कोई सोचता नहीं, बट रिसेंटली आई हैव सीन कि लोग लूडो खेलते हैं, जो बेसिकली मैनुअल खेलने में ज्यादा मजा आता है, बट अभी कंप्यूटर पे खेलते हैं। तो
Now, what is random you understood in short? कोई भी number select करना है. Okay, now see illustration 1. Draw a random sample of 10 students underlined without replacement from a population of 70 students of standard 10 of a particular school for testing the IQ level. Now, ध्यान दो, population कितना है तुम्हारा? Population size n is equal to 70. Now, जो भी number तुम select करोगे इसमें से, it has to be between 1 to 70. You understood this now? No. Sample कितना select करना है? Sample size small n denoted by small n is equal to 10. 10 लोगों को select करना है तुम्हें. Now, there is this concept. Sample frame. Do you know what is a frame? Frame is the boundary. Frame is the boundary. चश्मे में जो frame है, that's the boundary which holds the glass. Okay. Frame. जो select करेंगे numbers, it should be between 1 to 70. You understood this? What is the sample frame? मैंने बताया उसका दायरा क्या है? What is the boundary? It should be between 1 to 70. That is what we call as a sample frame. Now, क्या करेंगे इसमें? We consider only first 2 digits of random numbers. We can select any row because you can see कि यहाँ पे 3 digit numbers है. अब मुझे जो चाहिए it should be between 1 to 70. तो ये 3 digit वाले maximum numbers है. उसमें 1 to 70 ढूंढना difficult है. तो हम क्या करते हैं? Randomly what we do is we select any row or column of any page of random number table booklet, but we shall use part of the table given above for clarity of understanding. Now come to the next page. Suppose we begin with random number from the third row. यानी जो third row है इसमें, you can see 992, 347, 253 and 338. Third row. And then consecutive row for selecting a random sample. The random number of first 2 digits of each number are listed below. यानी हमने क्या किया? ये जो 3 digit numbers है इसको convert कर दिया into 2 digit. समझ में आया? So third row का first is 992. अब वो कितना हो गया? 99. तीसरा digit eliminate कर दिया. अब इसका कोई logic नहीं है कि सर ऐसा क्यों किया? तुम बोलोगे कि मुझे मिडिल नंबर एलिमिनेट कर लो, फर्स्ट नंबर एलिमिनेट कर लो. What we are going to do is we are going to select numbers randomly. But for understanding, we all are using the last number को last digit को eliminate कर दिया. So now we start with the third. Will 99 come? Okay. Will 34 come? So we write 34. Now mind it. This is without replacement. What is the meaning of without replacement? That numbers won't be repeated. तो एक बार अगर 34 आ गया तो दूसरी बार आएगा. पर अगर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है तो 34 can come once, twice, thrice, multiple times. Okay. Then next क्या है? 25, then 33, then 42, then 98 will come. इसको कट कर दो. 56, then 78 will come, 27, then 15, then 49, then 7, then 81 will come, then 30. Very simple process of selecting samples. पता चल गया कैसे सैंपल सिलेक्ट किया? Okay. Now, another method क्या है? Another method ये है. Since the size of population is 70, we shall ignore random numbers. अच्छा, okay, same method. There is one more method known as remainder method, but तुम्हारे syllabus में नहीं है तो मुझे उसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि उसमें तुम्हें divide करना पड़ेगा. You know what is remainder? जो रह गया, जो divide हुआ नहीं. तो ऐसा method था previous syllabus में, अभी नहीं है तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ. Now, illustration 2 देखो. Now, very interesting illustration.
We shall, sorry, next. Illustration 2. Draw a random sample of 7 income tax files without replacement, underline, without replacement from a population of 5,000. Income tax files for scrutiny. Do you know what is scrutiny? Do you know what is income tax returns? इनकम टैक्स का रिटर्न भरो, जीएसटी का रिटर्न भरो, यानी क्या पता है? इट इज अ डिक्लेरेशन व्हाट यू गिव टू गवर्नमेंट कि ये साल मैंने इतना इनकम जनरेट किया, उसके ऊपर इतना टैक्स भरना है, वो मैंने भर दिया. यू गिव अ डिक्लेरेशन टू द गवर्नमेंट. अब तुम जो डिक्लेयर करते हो वो सही है कि नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा? विल रैंडमली पिक अप सम केसेस एंड they will investigate कि तुमने जो कहा वो सही में है कि नहीं. Understood this? तुमने कुछ इनकम कम तो नहीं दिखाया है, ओके, बराबर दिखाया कि नहीं दिखाया, टैक्स बराबर भरा है कि नहीं. That is known as scrutiny, income tax scrutiny. Okay. Now, कितना population है, इसका size है 5,000. So we write population size capital N is 5,000. Sample कितना select करना है तुम्हें? Small n कितने select करने? Sample 7. Very good. Now this is what? Without replacement. You have to write all these things in exam. Okay? Because बहुत scoring है. अगर 1 mark का भी sum है तो it takes hardly 30 seconds to solve the sum. Now without replacement, up. सैंपल फ्रेम लिख दो. सैंपल फ्रेम 1 to 5,000. अब यहाँ पे जो टेबल है, these are all for understanding. एग्जाम में जो सम आएंगे वो बहुत सिंपल आएंगे, ये समझने के लिए कि रियल में लोग कैसे इसको यूज करते हैं. नाउ यू कैन सी वो ये सब 3 डिजिट नंबर्स है. तो आइडियली मुझे चाहिए 1 से लेके सिंगल डिजिट से लेके 4 डिजिट नंबर्स. इजंट इट? तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट जो है ना कॉलम, उसके फर्स्ट 3 डिजिट लूंगा और सेकेंड का फर्स्ट. पता चला? अब जो पहला आएगा वो 0532. सो विल इट कम और नॉट? 0532 विल इट कम और नॉट? 532 आएगा कि नहीं? इट विल कम. ओके. देन सेकेंड 6674 बिकॉज़ 6000 हो गए, इट विल नॉट. समझ में आ रहा है सबको? ओके. थर्ड, विल इट कम 9923? नो. 4289? Understood this, all of you? Okay, very simple. Now come to illustration 3. Draw a random sample of size 5 with replacement, without replacement from a population of 50 units using the following 15 2-digit random numbers. Now, numbers already दिए हैं. Illustration 3. Population size कितना है? Capital N is equal to 50. Sample size small n is equal to 5. Now it is with replacement or without replacement? Both. Sample frame 1 to 50. You understood this? Okay. Now we have to find samples, 5 samples. One is with replacement, other is without replacement. Now let's check out. First number 62. Will it come? No. 25? दोनों जगह आएगा 25. Then 6? 6? Yes. Okay. Then 60? 95? 55? 98? 11? Then 71? 25? 25 will come here or at both the places. Only with replacement. Without replacement में आएगा नहीं. समझ में आया? Then 20,
So 20 will come over here and over here. अब यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 खत्म हो गया. Okay, next 20 के बाद 40. You understood how we select the samples? सबको पता चल गया ये? Okay, fantastic. Now advantages, disadvantages कुछ करते हैं. लिखना है तुम्हें नहीं लिखना. एक तो लिखो भाई, अभी सॉन्ग्स है इसमें क्वेश्चन में जब प्रैक्टिकल सॉन्ग्स एक तो लिखो आगे आवाज. जल्दी लिखो, जल्दी खत्म कर देंगे चैप्टर, नहीं तो कल भी बुलाऊंगा. तेरे सामान लोग के हमने लिख लिया. सही. नहीं होगा. देखिए नेक्स्ट ओके. ये तुम्हें लिख दिया ये तीनों. ये काम आएगा तुम्हें एग्जाम में. These three is important. Sample size, population size and sample frame. Frame यानी you know कि इसके अंदर से select करना है, इससे बाहर जाना नहीं. Although population size से पता चल ही जाता है, but you write this is the term used, sample frame. What's the frame of your sample? Minimum 1, maximum 50. Okay, yeah. Now, population is divided into two parts. Homogeneous population and heterogeneous population. Now, अभी जो population है हमारे क्लास में, तुम सब स्टूडेंट्स का, excluding me, ओके, वो कौन सा टाइप का population है? Homogeneous है या heterogeneous? You are wrong. How do you know the meaning of this?
How heterogeneous? How homogeneous? ध्यान दो. अच्छा, what is the biological name of human beings? Homo sapiens. Okay. Now, ध्यान दो. Homogeneous यानी क्या? ध्यान दो. ये जो अभी पॉपुलेशन है ना हमारा क्लास में, वो एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है. Homogeneous means that the units of the population possess similar characteristics. Now here it is very visible that we have boys and we have girls. So the population is not a homogeneous population because say for example I want to conduct a survey on preference, career preference. तो हो सकता है गर्ल्स का करियर प्रेफरेंस में डिफर फ्रॉम करियर प्रेफरेंस बाय बॉयज. पॉसिबल है. ओके. इफ आई से चॉइस ऑफ मूवीज, तो बॉयज में हैव डिफरेंट चॉइस ऑफ मूवीज, गर्ल्स में हैव डिफरेंट चॉइस ऑफ मूवीज. आई हैव सीन कोई जबरदस्त एक्शन वायलेंस ब्लडशेड वाला मूवी हो तो वहां पे many girls may not be interested going over there, पर कोई रोमांटिक मूवी है तो कोई कॉमेडी है तो मिक्स. दिस इज हाउ प्रेफरेंस इज. हॉरर मूवी. ओके. तो अलग अलग टाइप के लोगों का अलग अलग प्रेफरेंस है. तो होमोजीनियस पॉपुलेशन यानी क्या कि मैं जिसके ऊपर सर्वे करना चाहता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली पॉपुलेशन से सैंपल सिलेक्ट होगा. सी, if this is your population, from the population you select a sample and this sample represents the whole population. अब तुम जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो किसके ऊपर करोगे? सैंपल्स के ऊपर. and based on what you conclude you will form an opinion about the full population. है कि नहीं? spending pattern. ओके. कौन कहाँ पे कितना खर्चा करता है बीइंग अ स्टूडेंट. हो सकता है देयर मे बी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर, बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन द एरिया वेयर दे लिव, बेस्ड ऑन द स्कूल वेयर दे गो. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैंपल सिलेक्ट किया है वो सही सिलेक्ट किया. अदरवाइज क्या होगा, ये जो सैंपल सिलेक्ट किया, से फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्लास फुल ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. इफ आई रैंडमली सिलेक्ट 5 स्टूडेंट्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि all 5 may be girls or all 5 may be boys because I am randomly selecting. शक्य है कि नहीं? पॉसिबल है. तो क्या होगा अगर मैंने जो सिलेक्ट किया मेरा पॉपुलेशन बॉयज एंड गर्ल्स है पर सिलेक्ट हुए ओनली गर्ल्स और उनके ऊपर सर्वे करके मैंने बोला कि 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये प्रेफरेंस है, तो कहने से मेरा सर्वे विल नॉट बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन वोंट बी एक्यूरेट. से फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है और मुझे देखना है कि कौन सी पार्टी को लोग वोट करना चाहते हैं. अब वो पॉपुलेशन में 10 साल का स्टूडेंट भी है और एक 19 इयर्स का स्टूडेंट भी है. तो मैं जो सैंपल सिलेक्ट करूंगा मुझे क्या चाहिए? All should be above the age of 18 years and they should be eligible to vote. तो मैं जो सैंपल सिलेक्ट करूंगा उसमें वो सिलेक्ट हुए. ज्यादातर लोग तो एलिजिबल ही नहीं थे वोट देने के लिए और उन्होंने बोला हम तो इसको वोट करेंगे, हम तो उसको वोट करेंगे. मैंने उसको एनालाइज कर दिया, रिजल्ट दे दिया कि हाँ ये साल ये पार्टी को इतने वोट्स मिलेंगे. क्या वो सही होगा? You understood this? What is heterogeneous population? So, a population where units have similar characteristics, I write over here, similar characteristics, they are known as homogeneous population. सब एक ही टाइप के. Okay? Students, CBSE and गुजरात बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा कर दिए और मैं कुछ सर्वे करना चाहता हूँ चॉइस ऑफ करियर प्रेफरेंस, करियर ऑप्शन. ओके. अब जो सिलेक्ट करूंगा वो सिर्फ गुजरात बोर्ड के ही सिलेक्ट हुए.
या सिर्फ सीबीएसई के ही सिलेक्ट हुए, या सिर्फ इंटरनेशनल बोर्ड के ही सिलेक्ट हुए, या फिर सिर्फ गुजराती मीडियम के सिलेक्ट हुए, तो क्या मैं उसके बेस पे सारे स्टूडेंट्स फ्रेटरनिटी के लिए कोई भी ओपिनियन बना सकता हूँ? वो गलत हो जाएगा। तो सिमिलर है तो होमोजीनियस, और सिमिलर नहीं है डिसिमिलर, that is known as heterogeneous. Now, what happens if you have a homogeneous population? You go for simple random sampling, कोई भी problem नहीं है, okay. But if the population is heterogeneous और तुम्हें सैम्पलिंग करना है, तो तुम क्या करोगे? ये जो पॉपुलेशन है उसको तुम डिवाइड कर दोगे इनटू टू पार्ट्स, एक है बॉयज और दूसरा है गर्ल्स। में अलग अलग कर दूंगा कि बॉयज के चिट्स अलग बॉक्स में, गर्ल्स की चिट अलग बॉक्स में। अंडरस्टूड दिस? तो ये जो दो मैंने पॉपुलेशन को डिवाइड किया इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज अ स्ट्रेटा, इज नोन व्हाट? स्ट्रेटा। एंड फिर मैं क्या करूंगा, इसमें से आई सिलेक्ट सैंपल से, फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें से 100 गर्ल्स और 100 गर्ल्स, तो पॉपुलेशन का टू पार्ट हो गया। दिस इज कंप्लीट पॉपुलेशन कैपिटल N, ये N1 और ये N2। अब इसमें से आई सिलेक्ट 5 स्टूडेंट्स एज स्मॉल n1, इसमें से आई सिलेक्ट 5 स्टूडेंट्स एज स्मॉल n। कहने से अब जो सैंपल है वो सही है। समझ में आ गया तुम्हें? Such sampling where you have units possessing dissimilar characteristics or a heterogeneous population, you go for stratified random sampling. समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या पता चल गया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब करेंगे? When it is homogeneous. And stratified कब करेंगे? When it is heterogeneous. अगर heterogeneous population है तो क्या करेंगे? उस population को पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो each part of that population possessing similar characteristics is known as a strata. And इसमें से जो सैम्पलिंग करेंगे it is known as stratified random. समझ में आ गया सबको? ओके, स्टूडेंट्स है, FY भी है, SY भी है, TY भी है, 11th भी है और 12th भी है, सब यूएल के स्टूडेंट्स। और मैं कोई सर्वे करना चाहता हूँ, तो डोंट यू थिंक आई शुड क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, देन सिलेक्ट स्टूडेंट्स। तुम्हारे स्कूल में कोई सर्वे करना है और स्टूडेंट्स, तो हर एक स्टैंडर्ड में से मैंने सिलेक्ट किया अलग अलग स्टूडेंट्स और फिर सर्वे किया, देन आई फॉर्म्ड अ ओपी। समझ में आ गया सबको? नाउ फ्रॉम सम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सिंपल है, ऐसा पॉपुलेशन दिया है और अगर हमें उसमें से सिलेक्ट करना है तो पॉपुलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड नॉर्मली जो नंबर सिलेक्ट करते हैं वैसे ही हमें नंबर्स सिलेक्ट करना। पता चल गया व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड, कंसेप्ट पता चला व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड। ये सब आगे पढ़ाई में आएगा, ये बीकॉम में आएगा फर्स्ट ईयर, बीबीए में आएगा, बीसीए में आएगा। स्टैटिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट है, ओके, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा, तो कंसेप्ट समझ लो, सबसे बहुत इजी है। नाउ कम टू द सम, पेज नंबर 264, क्वेश्चन नंबर 16। Draw a random sample of 2% student, underline करो, without replacement from 600 students of a particular college for giving their feedback on faculty members. There are 200 students in each of the 3 years, FY, SY and TY. Use the following 3-digit random numbers. Now,
सबसे पहले यू कैन सी कि पूरा कॉलेज है, उसमें FY है, SY है और PY है, तो अलग अलग तीनों के लिए दिए नंबर्स, FY को अलग कर दिया, SY को अलग कर दिया और PY को अलग कर दिया ना। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन साइज कितना है? कैपिटल है 600। अब FY का पॉपुलेशन कैपिटल N1 is 200, SY capital N1 is 200 and N2 is 200 and N3 is equal to again 200। बराबर है। कितना परसेंटेज सिलेक्ट करना है मुझे? 2%। सो स्मॉल सैंपल, स्मॉल N1 for this strata FY 200 का 2% is 4, again 4 and again 4। Understood this? याद है FY के जो नंबर्स है उसमें से मुझे कितने नंबर्स चाहिए? 4 चाहिए। What is the frame? सैंपल फ्रेम। जो भी सिलेक्ट करेंगे वो कौन सा होगा? What will be the frame? 1 to 600। Understood this? लिख लो। सर आप ही कर लो ना, देख लेते, समझ में आ जाएगा, है ना? ऐसा बिल्कुल मत सोचना मैं अकेला क्यों सफर करूं, तुम भी करो। सैंपल फ्रेम है ना, it will be 1 to 200 until 5। Sample frame 1 to 200 because in every section there are 200 students only। Okay, so we cannot take 1 to 600। Okay, because the roll number है F5 में 1 to 200 है, यहाँ पे भी 1 to 200 और यहाँ पे भी 1 to 200। Understood this? Now, see the numbers. First, F5 158, will it come? Yes. Yes. So यहाँ पे 158, then 92, yes. 411, 411, no, there were 200 students. 745, 9, yes. Then 724, 674, 550, 716, 359, 419, 696, 200. Yes. Got it? Okay. S1. 384. No. Again, there are 384. No. Then 19. 384 will not come. 19. Yes. Then 679, 131, 390, 57, 299, 786, 6. Yes. Okay, all are without replacement. Then third, 227, 483, 741, 766, 27, 70, 648, 956, 198, 912, and 200. 58. 200 नहीं आएगा without replacement है, पर same might should not be repeated। Let me check that, sir। Textbook से अलग level पर 200 बराबर 200
बिकॉज यहाँ पे रिपीट हो सकता है, यहाँ पे रिपीट हो सकता है, 200 कैन कम ट्वाइस, बट ओवरऑल ये अलग है, तो काम नहीं करेगा। 630 ओके, हो गया सबका? ओके, नाउ सत्यम है जाना अंदर वो क्लास में, लेकिन होते लोग हैं आईपीसीसी स्टूडेंट्स पता भी नहीं होगा तुझे वो क्या है, वो कैसा होता है। ओके, नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक चैनल पेज नंबर वेरी इंटरेस्टिंग। Last part of this chapter. Same view. Okay. ये नया कंसेप्ट है। पेज नंबर 258. Now we are going to go for page 258. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये थर्ड कैटेगरी है कि ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है ना। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ध्यान दो, द फर्स्ट सैंपल यूनिट इज रैंडमली सिलेक्टेड, यानी जितने भी नंबर्स है उसमें से एक स्टूडेंट को मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया। ओके, से फॉर एग्जांपल रजत वो सिलेक्ट हो गया एज माय रैंडमली सिलेक्टेड फर्स्ट सैंपल। नाउ remaining units are automatically selected in underline definite sequence at uniform interval from one another. This method of sampling is usually recommended. Underline करना ये सब कि कब इसको यूज करते हैं, if complete list of population unit is available and units are arranged in some systematic order such as alphabetical, chronological, geographical, etc. Systematic sample units are uniformly distributed over the population. Now, मैंने जब ये सिलेक्ट किया एक यूनिट, ओके, उसके बाद I'll say कि first selected unit is Rajat, student is Rajat, तो रजत के बाद उसके बाद every fifth student will become my sample. You understood this? एक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद 5th, 10th, 15th, 20th. You understood this? Okay, that is systematic sampling. Now, ध्यान देना, नेक्स्ट वाला समझ में आता है। Suppose that the n units of population, do you know what is capital N? Population size, are arranged in some systematic order and are numbered 1 to capital N. We want to select a sample of small n, क्या है पता है? Small n क्या है? Sample size from it such that capital N is equal to n into k, or k is equal to capital N upon n, where k is usually called the sampling interval. So we write down n population size, you may write please, small n sample size, and small k, this is small k, is sampling interval. What is this interval? मैंने 5 का इंटरवल सिलेक्ट किया, तो every 5 स्टूडेंट्स के बाद, understood this? अब ध्यान दो, there is an example कि there are 42 bottles. I want to select
6 bottles. Using what? Using systematic sampling. Now, capital N is equal to 42. Small n is equal to 6. Okay, sampling interval. अब मुझे 6 चाहिए is equal to capital upon small n, which is equal to 42 upon 6 is equal to 7. तो मेरा इंटरवल क्या होगा? 7. अब मैं क्या करूँगा? Select first sample from numbers 1 to 7. यानी जो पहला सैंपल मैं सिलेक्ट करूंगा इट विल बी बिटवीन 1 to 7 बिकॉज मुझे 6 चाहिए एंड देयर इज अ इंटरवल ऑफ 7. तो पहला सैंपल मैंने सिलेक्ट किया एग्जांपल 3. 1 से 7 में एक रैंडमली नंबर सिलेक्ट किया 3. अब इंटरवल क्या है? 7. तो नेक्स्ट क्या आएगा? 3 plus 7 10. 10 plus 7 17. 24. 31 and 38. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You understood this? Okay. तुम बोलोगे कि सर 3 नहीं, randomly तुमने select किया 5. Say for example you selected 5. So we start with 5. 5 and 7 12. 12 and 7 19. 26. 33 and understood this? किसी ने कहा कि सर randomly I will select 1. तो 1 and 7 8. 8 and 7 15. 22. 29. 36. This method of selecting sample is known as systematic sampling. Understood this? एकदम easy. Okay, लिख लो. यार ये इसमें कोई भी select कर सकते हो. You can flip the page and see the bottles given. कैसे सेलेक्ट किया? अगर ये फ्रैक्शन में आएगा तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे. सबसे ठीक तो करेंगे. एग्जाम में आ सकते हैं, मेरे असाइनमेंट में भी. साइन करके पास कर. हमारे क्लास में जो अटेंडेंस लिस्ट है ना, उसमें भी सीरियल नंबर है एंड नेम्स आर अल्फाबेटिकली. ओके, मुझे 10 सिलेक्ट करने स्टूडेंट एंड से देयर आर 80 स्टूडेंट, तो इंटरवल क्या हो जाएगा? 8. 80 स्टूडेंट और 10 सिलेक्ट करने तो 8 हो जाएगा. और 1 to 8 में से मैं कोई भी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट कर दूंगा. उसके बाद +8 +8 +8 +8. अंडरस्टूड दिस सिस्टम? ओके, हो गया सबका? नाउ कम टू पेज नंबर 264. Question number 18. Question number 18. There are 60 employees. Are recording चालू? देखो okay, thank you. There are 60 employees in the office of an IT company. 5 employees are to be selected using systematic random sampling for a trial of work from home concept. Now, do you know what is work from home? ये जनरली IT इंडस्ट्री में होता है कि तुम कंपनी में जाते हो और तुम वहां पे बैठते हो, जगह ऑक्यूपाई करते हो, उनका इलेक्ट्रिसिटी जलाते हो, उनके रिसोर्सेज यूज करते हो.
तो कंपनी ऐसा कंसेप्ट लेके आया है कि वर्क फ्रॉम होम, तो कंप्यूटर से ही कनेक्ट करना है थ्रू इंटरनेट, तो घर पे बैठ के काम कर सकते, दैट इज नोन एज वर्क फ्रॉम होम. ओके, नाउ explain how can a sample be selected. Now let's first write the information. Always have this habit: population size capital N is equal to 60, sample size small n कितना select करना है? 5. Now let's find sample interval. Sampling interval K is equal to capital N by small n, 60 by 5, which is equal to 12. Now, first sample to be selected from numbers 1 to 12. 1 to 12. Example, you selected 5. ठीक है, तो 5 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 5 plus 12 17, 17 plus 12 29, 29 plus 12 41, 41 plus 12 53, 53 plus 12 65. Understood? Also, so 1 to 12 है. Oh, 5 is better. Okay. So first is that's right. 5. It is to 60 the exceed thing. Okay. 5 and 12, 17, 17 and 12, 29, 41 and 53. Example, you select 3. 3 plus 12, 15, 27, 39, 51. पता चला सबको कि बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिक. Let me check the answer. इसमें हम लोग ने क्या लिया सिलेक्ट किया? You have to 18 दिया ही नहीं. Fantastic. Okay. Because here you have to make you have to write the answer that how you will be selecting. So you have to just explain this. Okay. बातें बंद करो. Question number 19. Important. Yeah. कैसा है एग्जाम? एग्जाम पर चेक जाता है सर, रिजल्ट ही अच्छा नहीं आता. बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है. अब रिजल्ट तो दिवाली के बाद आएगा. घर पे कुंडल दे कि खराब गया तो दिवाली बिगड़ेगा. बेस्ट गया. जब रिजल्ट आएगा हम देख लेंगे ज्यादातर क्या हो जाएगा. एक तो आंसू मिला देगा. ओके. नाउ 19 sum का चलो. 19 sum. Select all possible sample of size 4 using systematic sampling from a population of 20 units. First, let's write population size. Capital N 20. Sample size small n is 4. Now sample interval. Sampling interval K is equal to capital N by small n. 20 by 4 is equal to 5. Now sample. First sample, we have to select between 1 to 5 any random number. Let's take 1.
1 plus 5, 6. 6 plus 5, 11. 11 plus 5, 16. Second, 2. 2 plus 5, 7. 12, 17. 3, 8, 13, 18. 4, 4, 9, 14, 19, and 5. 5, 10, 15, and 20. You'll get 2 marks for this stupid song. इसमें है क्या? कुछ भी नहीं है. और बहुत समझ. Now, ध्यान दो. कितने सैंपल सिलेक्ट हुए? 1, 2, 3, 4, 5. Can I say जितना सैम्पलिंग इंटरवल है उतने पॉसिबल सैंपल्स हैं? Can I say जितना सैम्पलिंग इंटरवल है उतने पॉसिबल सैंपल्स हैं? Understood this? Now, 20th question देखो. A teacher wants to check homework of 10 students out of 30 students of standard 11 of a school. How many random samples can be obtained using systematic sampling? Can you tell me? What is the sampling interval? 3. समझ में आया? ओके, तो जो भी सिलेक्ट करोगे उसमें 3 ही पॉसिबिलिटी है. पहला जो सिलेक्ट होगा वो 1, 2, 3 में से होगा. तो पहला 1 से चालू होगा, दूसरा 2 से चालू होगा और तीसरा 3 से. Understood this? That's it for this chapter.